السلام علیکم دوستو، کیا آپ سکوبا غوطہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، زیر آب دنیا کا نظارہ، شوق، مہم اور پیشہ، سکوبا غوطہ خوری۔ سکوبا غوطہ خوری زمانہ قدیم سے انسان سمندر کے اندر جانے کا خواہشمند تھا، مگر اس کے پاس ایسی کوئی شے نہیں تھی جس سے وہ پانی کے اندر سانس لے سکے۔ اس لیے وہ چند ہی منٹ سمندر کے اندر رہ کر واپس آ جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ غوطہ خوری کے آلات ایجاد ہونے لگے، اور لیکن ان کی مدد سے بھی انسان گہرائی میں نہ جا پاتے۔ آخر 20ویں صدی میں سکوبا غوطہ خوری سامنے آ گئی۔ اب انسان سمندر کی تہہ میں جانے لگا ہے۔ آج دنیا میں لاکھوں لوگ شوقیہ سکوبا غوطہ خوری کرتے ہیں، تہہ سمندر جا کر وہاں کی انوکھی زندگی کے حسین و جمیل نظارے دیکھتے ہیں۔ ان میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں جنہیں غوطہ خوری کی تربیت دی جاتی ہے۔ سکوبا غوطہ خوری پیشہ بھی ہے۔ اس پیشے سے منسلک لوگ ڈوبے ہوئے بحری جہازوں اور کشتیوں میں جا کر قیمتی اشیاء تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایک منافع بخش کام ہے۔ پھر سائنسدان بھی سکوبا غوطہ خوری کر کے سمندر کی تہہ میں جاتے اور تحقیق کرتے ہیں۔ اس طرح بحری فوج بھی سکوبا غوطہ خوری کے ماہر فوجی ملتے ہیں۔ یہ دشمن کے خلاف سمندر سے حملہ کرتے ہیں۔ ان کی اصطلاح بھی مینڈک لوگ فروگ مین کہتے ہیں۔ تاریخ بولتی ہے، جی ہاں، ماضی میں غوطہ خور کھوکھلا اور لمبا سا بانس منہ میں پکڑ کر سمندر میں جاتے تھے۔ بانس کے خلا سے انہیں ہوا ملتی رہتی، مگر غوطہ خور زیادہ گہرائی میں نہ جا پاتے۔ اس کے بعد غوطہ خور گھنٹی ڈائیونگ بیل ایجاد ہوئی۔ یہ دھات سے بنا ڈبہ ہے جس میں ہوا موجود ہوتی ہے۔ غوطہ خور اس میں بیٹھ کر سمندر کے اندر جاتا۔ اس آلے کی مدد سے بھی غوطہ خور زیادہ گہرائی میں نہیں جا پاتا تھا۔ غوطہ خور ہیلمٹ۔ 1829 میں برطانیہ میں ایک ایسا ہیلمٹ ایجاد ہوا جس کے ساتھ نالی لگی ہوئی تھی۔ غوطہ خور ہیلمٹ پہن کر سمندر میں اتر جاتا۔ ہیلمٹ کے ساتھ لگی نالی سطح پر کھڑی کشتی میں رکھے ہوئے اس بڑے سلنڈر سے منسلک ہوتی۔ یوں غوطہ خور کو بذریعہ نالی ہوا ملتی رہتی، مگر تب بھی غوطہ خور زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتا تھا۔ جدید دور 1942 میں فرانس کے دو موجدوں جیکاس کیسٹیو اور ایمل گیگنن نے سکوبا غوطہ خوری کا جدید آلہ ایجاد کر لیا جس کو انہوں نے ایکوا لنگ کا نام دیا۔ اس آلے کی ایجاد نے غوطہ خوری کرنا آسان ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد موجود غوطہ خوری نت نے آلات ایجاد کرنے لگے۔ مقصد یہ تھا کہ غوطہ خوری کو زیادہ آسان بنایا جا سکے، چنانچہ لوگ بھی اسے بطور مشغلہ اپنانے لگے۔ فلموں میں ایکوالنگ پہن کر مناظر فلمائے گئے، سائنسدان سمندروں میں تحقیق کرنے لگے۔ یوں سکوبا غوطہ خوری ایک انسان دوست اور مفید عمل بن گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں انگریزی کا لفظ سکوبا دراصل سیلف کنٹینڈ انڈر واٹر بریتھنگ اپیریٹس کا مخفف ہے۔ اس کے معنی ہے پانی کی تہہ میں سانس لینے کا خودکار آلہ۔ جب غوطہ خور 10 میٹر سے زیادہ گہرائی میں چلا جائے تو وہ سرخ اور زرد رنگ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہاں خون کا رنگ نیلا دکھائی دے گا۔ سکوبا غوطہ خوری کے آلات سمندر کی تہہ میں جانا خطرناک عمل ہے، اس لیے غوطہ خور سکوبا غوطہ خوری کے تمام آلات پہن کر پانی میں اترتے ہیں تاکہ ان کی زندگی محفوظ رہے۔
स्कूबा गोताखोरी के लिए दरकार बुनियादी आलात का तारुफ पेश है। स्कूबा दस्ताने, अगर गोताखोर ने गारों और खाइयों में जाना हो तो वो दस्ताने पहनता है। ये दस्ताने पहनकर पत्थरों और चट्टानों को हटाने में आसानी रहती है और जल्द भी खराब नहीं होती। ये पायदार चमड़े से बने होते हैं, हाथों को तय समंदर में गर्म भी रखते हैं। खुशक लबास, ये गोताखोरी का खसूसी लबास है। गोताखोर के लिए इसे पहनना ज़रूरी है ताकि उसका जिस्म समंदर के नमकियात और कमियाई मादों से महफूज रहे। ये लबास जिस्म को गर्म भी रखता है। समंदरी पानी काफ़ी ठंडा होता है। अगर ज़्यादा सर्द पानी में गोताखोरी करना हो तो ज़्यादा मोटा खुशक लबास पहना जाता है। ये लबास मजबूत रबड़ से बनता है। गोताखोरी मास्क, पानी के अंदर इंसानी आंखें सही तरह मनाजर नहीं देख सकती, इसलिए गोताखोर आंखों पर गिलास से बना खसूसी मास्क पहनता है। इसकी मदद से उसे समंदर के अंदर हर शय साफ दिखाई देती है। अगर ज़्यादा गहराई में जाना हो तो वो हेलमेट पहनता है, मगर कम गहराई में मास्क से भी काम चल जाता है। कतबनमा कंपास, गोताखोर कतबनमा भी अपने पास रखते हैं। इसकी मदद से इसे समंदर में तैरते हुए सिमत का अंदाज़ा रहता है। ख़ास तौर पर वो गहराई में जाए तो वहाँ बहुत अंधेरा होता है, तब कतबनमा की मदद से गोताखोर सिमत का तयन रखता है, भटकने नहीं पाता। माही पर, जिसे फिन कहा जाता है, ये खास किस्म के लंबूतरे जूते हैं। मछली के परों से मिलती जुलती शक्ल के बास माही पर कहलाते हैं। इनकी मदद से पानी में तैरना आसान होता है। ये उम्दा किस्म के रबड़ से बनते हैं। ज़ेरे आब दबाव पैमाना, ये भी एक अहम आला है। ये गोताखोर खुद बनाता है। ये टैंक में कितनी हवा रह गई है, जब टैंक में थोड़ी सी हवा रह जाए तो गोताखोर ऊपर आ जाता है। रेगुलेटर, ये टैंक में लगा आला है। इसके जरिए टैंक में मौजूद ज़्यादा दबाव वाली हवा को कम दबाव में बदला जाता है। गोताखोर फिर इस कम दबाव वाली हवा में आसानी से सांस ले सकता है। टैंक, ये सिलेंडर होता है जिसमें हवा भरी होती है। इसको गोश्तखोर पश्त पर रखता है और तैरते हुए इस हवा की मदद से सांस लेता है। ये टैंक स्टील या किसी और मजबूत धातु से बनता है। अगर कम गहराई में जाना हो तो टैंक में आम हवा भरी होती है। ज़्यादा गहराई में जाना हो तो खसूसी हवा भरते हैं। इस हवा में ऑक्सीजन कम और नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होती है। उछाल आला तादील, ये आला समंदर में गोताखोर को डूबने से बचाता और उसे तैरने में मदद देता है। ये आला एक जैकेट है जो गोताखोरी करते हुए पहनी जाती है। इस जैकेट के अंदर हवा भरी होती है जिसे कम या ज़्यादा करना मुमकिन है। अगर गहराई में जाना हो तो हवा निकाल दी जाती है। जैकेट में जेबें होती हैं जिसके अंदर गोताखोरी के लिए दरकार छोटे आलात रखे जाते हैं। स्नोरकेल, ये सांस लेने की नाली है जिसे गोताखोर समंदर के अंदर जाते हुए सांस रखता है, लेकिन तजर्बाकार गोताखोर इसके बगैर भी काम चला लेता है। ताहम ना तजर्बेकार गोताखोर के लिए स्नोरकल रखना ज़रूरी है। ये सांस लेने में इसकी मदद करता है। गहराई पैमाना, डेप्थ गेज, गोताखोरी के अलावा ज़रूर अपने साथ रखता है। ये इसको बताता है कि वो समुद्र में कितनी गहराई तक जा चुका है। टैंक बजाओ, ये इलास्टिक बैंड से जुड़े धाती टुकड़े हैं जिन्हें टैंक बजाओ कहा जाता है। ये बैंड टैंक या सिलेंडर के गिर्द लिपटे जाते हैं। समंदर की तह में जब गोताखोर अपने साथियों को मुखातिब करता है तो वो टैंक बजाओ से काम लेता है। वो इलास्टिक बैंड खींचकर टैंक पर मारता है जिससे आवाज़ पैदा होती है। जोरदार आवाज़ साथियों को इसकी तरफ मतवज्जा करती है। जो लोग शौकिया स्कूबा गोताखोरी के ख्वाहिशमंद होते हैं वो ज़ेरे समंदर आम तौर पर 30 से 40 मीटर 100 ता 133 फुट गहराई में जा सकते हैं। अगर किसी को मज़ीद गहराई में जाना है तो फिर उसे खसूसी तरबियत हासिल करना पड़ती है। नीज़ उसे ज़्यादा आलात दरकार होते हैं ताकि समंदर की गहराई में उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो।
गहराई में जाने का रिकॉर्ड। स्कूबा गोताखोरी का मुकम्मल लिबास पहनकर समंदर में ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड मिस्र के गोताखोर अहमद जबर ने कायम कर रखा है। 2014 में उन्होंने बहरे अहमर में गोता लगाया था, तब वो 332 मीटर यानी 1090 फुट गहराई तक चले गए थे। आज तक कोई भी दूसरा गोताखोर इतनी गहराई में नहीं जा सका। स्कूबा गोताखोरी की तरबियत। दुनिया भर के साहली मकामात पर स्कूबा गोताखोरी सिखाने वाले तरबीती मराकज मौजूद हैं। इन मराकज में समुद्र में गोताखोरी करने वालों को गहराई में तैरना सिखाया जाता है। गोताखोरी के आलात खासे महंगे होते हैं, इसलिए इन मराकज से आलात किराए पर भी मिल जाते हैं। हमारे प्यारे वतन के शहर कराची में स्कूबा गोताखोरी सिखाने वाले सेंटर मौजूद हैं। ये सेंटर सिंध और बलोचिस्तान के साहली मकामात पर समुंदर के अंदर गोताखोरी कराने का एहतमाम भी करते हैं। जमाना कदीम से इंसान ये चाहता रहा है कि समंदर के अंदर की दुनिया देखे। ऐसा करने के लिए उसने एक गोताखोरी का आगाज किया, मगर इससे भी बहुत कम उसके दुनिया के बारे में जान सका। गोताखोरी घंटी के इस्तेमाल से इंसान को कुछ कामयाबी मिली। गोताखोरी को शदीद शक्ल 20वीं सदी में मिली, जब गोताखोरी का लिबास ईजाद हुआ। इनकी मदद से इंसान ने कई 100 फुट तक गहराई में जाकर आबी दुनिया देखी। गोताखोरी एक बाकायदा साइंस है। इस इल्म के बदौलत इंसान ने समंदर की तह का मुताला कर लिया। आज गोताखोरी को मशगले और पेशे का भी दर्जा हासिल है। दुनिया के कई ममालिक में शौकिया गोताखोरी की तरबियत दी जाती है। अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मजे मजे से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।